welcome back to my channel. तो आज आमे स्किल्स ऑफ कम्युनिकेटिव इंग्लिश बुक रो द प्राइसलेस गिफ्ट चैप्टर रो पार्ट 3 पढ़िबा किंतु बिफोर वी स्टार्ट लेट्स रीड द पार्ट 1 and part 2 as a revision. I went to a visit in a restaurant. It was lunch time. There were people eating and drinking. The restaurant was very crowded. I saw that some of the chairs and tables had been pushed into a corner. I chose the corner table, seated myself, and started skimming through the newspaper. At that moment, I noticed a very young girl looking at me. Her eyes were large and they had a sad expression. As she was going out, she asked the cashier in a low voice, "Is that gentleman an Indian?" "I think so," the cashier replied. The girl looked at me once more and went out. It surprised me. Why? What was the matter? Her interest in me aroused my curiosity in her. When I had finished my lunch, I asked the waiter, "Do you know the girl who was sitting out there?" "No, sir. I noticed she has lunch here on Saturdays. She comes on payday only. Perhaps she does not earn much." I was moved by what he said. The curiosity I felt about the girl persisted. Why had she inquired about me? Who was the mysterious child? I kept thinking of her poverty-stricken, sad, anxious figure. Could I help her in any way? The week passed. Saturday came again. I went to the same restaurant. As I entered, I saw her sitting at the same table as before. She was eating. I went up to her and took the chair opposite hers. I wished her a good afternoon, and then, by making one brief remark after another, I was able to start a conversation. At last, she asked, "Are you an Indian?" "My brother is in India. He is a soldier. We have not had a letter from him for a long time. My mother is very worried. She is afraid something has happened to him." I learned that her only guardian was her brother. She lived with her widowed mother, Mrs. Betty. I understood how she felt. I think she wanted me to see her mother, but she did not have the courage to ask me to accompany her home. We finished our lunch and got up together. As we walked, I asked her, "May I know your name?" "My name is Maggie." We chatted pleasantly and soon reached a bus stand. This gave me the opportunity of asking her where she worked. "Do you usually go this way?" I asked. "No," she answered. "I usually take the village bridge. It is being repaired at the moment." Soon we approached their neighborhood. We had reached a narrow doorway. Maggie took a thin latch key out of her pocket and opened the door. She entered and said, "Please come in." Together we descended the stairs to the kitchen. "Mother," said Maggie from the doorway, "an Indian gentleman has come to see you." "Where is he?" the old woman asked eagerly. With a smile, I stepped into the kitchen behind Maggie. She introduced me. "How do you do?" I asked and held my hands out. I said and held out my hands. "Excuse me, my hands are covered with flour. I am making cakes. People will come to buy them this evening. This is the way we make our living. Lots of trouble. Saturday night is a time of festivity in poor neighborhoods. All kinds of things are sold on this night. The streets are more crowded than any other day. This is the day when they are able to spend a little from their weekly wages." "What kind of country is India, sir?" asked Mrs. Betty as she resumed her cooking. "A beautiful country. Safe to live in? Are not there too many snakes and tigers? Don't they kill people?" This type of questions has often been asked. Don't believe that snakes and tigers are killed by the people if they come too close. My son is in the Punjab. He is a soldier. What kind of place is Punjab? The Punjab is a fine place. It is a very healthy place to live in. I am glad to hear it," Mrs. Betty said. Her baking was finished.
Maggie, she said, take Mr. Gupta upstairs. I will wash my hands and bring tea. As we drank tea, I talked about India. Mrs. Betty showed me a photograph of her son. It had been kept very neatly in an envelope by the mother. His name was Frankie. Maggie, said Mrs. Betty. So, Mr. Gupta, the ring which your brother sent you. She brought it and asked, can you see the past and future in it? I took it and examined it. When Frankie sent the ring, Mrs. Betty said, he wrote that if you concentrate on the distant person as you gaze into it, you will be able to see him and what he is doing. We have not had any news from Frankie for a long time, but we have not been able to see anything. Why don't you try? You are an Indian. You may be able to do it. I did not have the heart to tell the mother and daughter that the ring was nothing much, not a miraculous thing from a distant land. How could I shatter their dream? So we have finished the part 1 and part 2. तो मु ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 रो गोटे गोटे वीडियो बनी सारी. जदि आपण मैंने देखी ना तो लिंक अच्छी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे आपण देखि परिबे. तो ये चलतु पार्ट 3 पढ़ा. Several months passed. I visited Maggie and Mrs. Betty, but no news had come from Frankie. Mrs. Betty was sick in a serious condition, aggravated by her anxiety for Frankie. I was in a fix. What would I say to console the mother? Only God knew whether Frankie was still alive or dead. तो एबे हमें यार अर्थ बुझा. Several months passed माने किछि मंथ माने मास किछि बीतीगला. पास्ट माने बीतीगला किछि मास बीतीगला. आई विजिटेड मैगी एंड मिसेस बेथी. मु मैगी और मिसेस बेथी को पाखु गली. मु माने कि एठी राइटर माने मिस्टर गुप्ता जाइथिले मैगी और मिसेस बेथी को देखिबा पई. बट नो न्यूज हैड कम फ्रॉम फ्रैंकी. किंतु कौनसी भी न्यूज फ्रैंकी पाखरु आसी नहीं. Mrs. Betty was sick in a serious condition, aggravated by her anxiety for Frankie. Mrs. Betty was sick माने मिसेस बेथी जे थिले तांको माने जेमती गोटे जिनस भाबिकी आमको जेमती मुंड बिंधा टाइप हो जाए, ज्वर धरी जाए, तांको सेमती होइतिला. काहेकि ना बहुत सीरियस कंडीशन हो जाइतिला तांकर. काहेकि ना अग्रीवेटेड बाय हर एंजाइटी फॉर फ्रैंकी. अग्रीवेटेड माने होची गुरुतर हैला. ठीक अच्छे. से पूरा गुरुतर हो जाइतिले. एंजाइटी माने होची उद्वेग. तांको पुओ फ्रैंकी रो उद्वेग रे तांकर पूरा से पूरा गुरुतर अवस्था रही जाइतिले. ठीक अच्छे. आई वाज इन ए फिक्स माने होची मो बड़ माने असुविधा पड़ जाइतिली. माने कि राइटर एठी बहुत असुविधा पड़ गले ए सब कथा देखि सुन के. व्हाट वुड आई से टू कंसोल द मदर. कंसोल माने होची सांत्वना देवा. से कहउछंती मनक मन भाबुछंती राइटर जे मु कोन कहिबी माँ जन को माने से फ्रैंकी रो माँ को सांत्वना देवा पई मु कोन कहि परिबी तांको. तापरे ओनली गॉड न्यू वेदर फ्रैंकी वाज स्टिल अलिव और डेड. केवल भगवान ही जानी छंती जो फ्रैंकी बंची छी ना मरी जाई छी. मिस्टर गुप्ता द गर्ल सेड. से जो मैगी थिला से कहला राइटर को जे मिस्टर गुप्ता माय मदर हैज नॉट बीन इल लाइक दिस बिफोर. से कहला जे मो माँ केबे भी आगुरु केबे भी एते सीरियस कंडीशन रे नथिले. इल माने होची माने गोटे सीरियस कंडीशन देह खराब टाइप रो इल कहते ताको. तो आगुरु केबे भी मो माँ कर एते देह खराब हेनी. से केबे भी एमती हे नाहंती. I have read in books that Indians love the truth. मो बही रे पढ़ी माने मैगी बही रे पढ़ी कौन से गोटे बही रे जे इंडियन माने भारतीय माने लव द ट्रुथ. से माने
सत्य को भल पाती भारतीय माने मैगी पढ़ी जे गोटे जे भारतीय माने सत्य को भल पाती इफ यू कुड ब्रिंग योर सेल्फ टू टेल मदर ओनली वंस आफ्टर लुकिंग इनटू द क्रिस्टल द फ्रैंकी इज ऑल राइट that he is alive. Will it be too much of a lie? Will it be very wrong? तो मैगी कहला जे से पढ़ी गोटे बही जे इंडियन माने भारतीय माने सत्य को बहुत भल पाती तो से कहला जे तुम जदि मो माँ को थरे कहीदेव से जो मुदीटा फ्रांकी पठेला से मुदीर गोटे क्रिस्टल को देखिकी तुम जदि कहीदेव जाकि माँ को जे तुम पुआ को किसी है जे फ्रैंकी इज स्टिल अलिव एंड नॉट डाई ही इज ऑल राइट देन माने फ्रैंकी को किसी है से बंची ताले से टे खुशी हो जाते विल इट बी टू मच ऑफ ए लाई कौन यहाँ बहुत अधिक हो गोटे मिछ हिसाब से बहुत अधिक हो विल इट बी वेरी रॉन्ग यहाँ कौन बहुत भूल हो I thought it over. I am not a very virtuous man, so I decided to do this. The list of my offense. ठीक अच्छे तो यार माने होची I thought it over माने मैं विषय किस समय भाविले माने राइटर ए विषय किस समय भाविले जे से माँ को फ्रैंकीर माँ को कहे ना नहीं एत बड़ मिछ कहे ना नहीं आई एम नॉट ए वेरी वर्जियस मैन माने राइटर जे थिले से एते भी माने सत्यवान व्यक्ति नथिले वर्जियस माने सत्यवान तो सत्यवान एते नथिले से तो सो आई डिसाइडेड टू डू दिस से सी सो मिछ कहवाई डिसाइड कले द लिस्ट ऑफ माय ऑफेंस माने भूल रो लिस्ट से भी लिखा द लिस्ट ऑफ माय ऑफेंस तो तापर देखो मैगी ब्रॉट मी द रिंग मैगी जो थिला से रिंगटा देला जोटा फ्रांकी पठेला आई टुक इट एंड अप्रोच्ड हर मदर्स बिसाइड से राइटर मैगी ठू से मुदीटा नेले पिंधिले आ मैगीर माँ को पाखु गले विशिंग हर ए गुड मॉर्निंग आई सेड मिसेस बेथी योर सन इज अलिव ही इज वेल सी माँ को पाखु गले गुड मॉर्निंग विश कले गुड मॉर्निंग विश कले कहले जे मिसेस बेथी योर सन इज अलिव ही इज वेल कहले जे तुम पुआ भल अच्छी बंची the old woman raised her head a little of the pillow ओल्ड वोमेन माने से बुढ़ी लोक जनक माने फ्रांकीर माँ जे से रेज्ड हर हेड माने टिके मुंड ऊपर को कले ऑफ द पिलो से जो तकिया तले मुँह लुचिकी शुई से टिके मुंड ऊपर को कले टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस वेल्ड अप इन हर आईज खुशीर लुह आखिर बोहिला टीयर्स माने होची लुह हैप्पीनेस माने होची खुशीर वेल्ड अप माने बोहिला आखिर खुशीर लुह बोही पड़ा मिसेस बेथी सुन रिकवर्ड से किछि दिन भितर ए कथा सुनिकी जो पुओ भल अच्छी कथा सुनिकी से बहुत जल्दी भल हो गले रिकवर माने भल हो गले इट वाज ऑलमोस्ट टाइम फॉर मी टू रिटर्न टू इंडिया सेटा टाइम थिला जे मु इंडिया को फेरी जाऊली से दिन मु इंडिया को फेरी जाऊली आ गोटे स्ट्रांजा आसीगला मैंने पारा आसीगला तो से दिन एटा जो दिन लिखाई से दिन से फेरुले आई विश्ड टू गो टू से गुड बाय टू मैगी एंड हर मदर बट द फैमिली वाज इन मॉर्निंग फ्रैंकी हैड बीन किल्ड इन द फाइटिंग ऑन द फ्रंटर I calculated and found that Frankie had been dead some days when I told his mother he was alive and well. I felt ashamed to face Mrs. Betty, so I wrote a letter to them announcing my departure and bidding them goodbye. तो से दिन जो जाऊले फेरुले इंडिया को I wished to go to say goodbye to Maggie and her mother. से तांकर इच्छा थिला जे से मैगी और मिसेस बेथी को जाके गुड बाय कहते बोली बट द फैमिली वाज इन मॉर्निंग माने होची
शोक प्रकाशन माने फ्रांकी मरी जाइथिला बोली से माने शोक प्रकाश माने बहुत दुखरे थिले सेतबेले से तो से तांको पाखु फ्रांकी हैड बीन किल्ड इन द फाइटिंग ऑन द फ्रंटर फ्रंटर माने होची देशर सीमा तो फ्रांकी रो कोन हिची ना सी गोटे युद्ध रे सीमा देश सीमार गोटे युद्ध रे से मरी जाइछि I calculated and found that Frankie had been dead some days when I told his mother he was alive and well. से calculate करछंती गणिछंती जे जो दिन से कहले तांको माँ को माने मिसेस बेथी को से जो दिन कहले जे तम पुअर फ्रांकीर किछि भी हेनी से बंचीची सेही दिन ठू किछि दिन पूर्व ही फ्रांकी मरी जाइछि गोटे फाइटिंग रे देशर सीमा रे जो फाइटिंग गोटे होउतला सेतरे से मरी जाइछि I felt ashamed to face Mrs. Bethy, so I wrote a letter to them announcing my departure and bidding them goodbye. तो से तांको फेस करि पार नथिले आई फेल्ट असेम्ड माने होची कोन लज्जित तो तांको बहुत लज्जा लागुथिले जे से एमती मिछ कथा कहउछंदी बोली तो से तांको मिसेस बेथी को फेस करिया पे तांको बहुत लज्जा लागुथिला तो से कोन कहले ना आई रोट ए लेटर टू देम अनाउंसिंग माय डिपार्चर एंड बिडिंग देम गुड बाय तो से गोटे लेटर लिखिले तादरे या लिखिले जे मु आज जाउची तांकर माने कहले जे से जाउछंती आ तांको गुड बाय भी लिखि दिथिले तो द मॉर्निंग ऑफ माय लास्ट डे इन लंडन डाउन से जो दिन से जाई थांते से दिनर सकाळ आरंभ होला डाउन माने आरंभ होला लंडन रो से दिन सकाळ आरंभ होला आई वाज टू लीव दैट नाइट से दिन राति रे ही लंडन छाड़ के इंडिया पळे आस्ता रिटर्न करता एज आई वाज हैविंग माय ब्रेकफास्ट देयर वाज ए नॉक ऑन द डोर जतबले सी ब्रेकफास्ट करथिले जलखिया करथिले सेतबले तांको कबाट रे कि गोटे खटखट कला नॉक माने खटखट करबा ठीक अछि मैगी हैड कम टू से गुड बाय मैगी तांकर जो लेटर पाइकी आस्थिला तांको गुड बाय कहबा पई सी वाज वेयरिंग ब्लैक सी कला पिंथिला तो आपण माने जानि थिबे कि के न जानि थिबे मु कहि दोछि जे लंडन रे किंबा अलगा देश मानकर मध्य जेतबेले कोनोसी माने मॉर्निंग पालन करा जाए माने शोक प्रकाशन करा जाए न तो जेतबेले शोक प्रकाशन करा जाए कार भी सेतबेले समान सब कला पिंधि थांती तो से कला पिंधि आस्थिला मैगी आर यू लिविंग टुडे से पचारला सी आस्क्ड आर यू लिविंग टुडे तमे आज जाउछ हेरी यस आई रिप्लाइड टुडे इज द डे ऑफ माय डिपार्चर राइटर कहले हाँ मु आज जाउची आज होची मोर एठार शेष दिन आज मु पळेबी हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच योर कंट्री एटा केते दिन लागे तुमर से कंट्री रे पहुंचे पई भारत रे पहुंचबा पई केते दिन लागे इन व्हिच पार्ट ऑफ द कंट्री डू यू लिव शी वांटेड टू नो से जानिबा को चाहला जे तुम को तुम देशर को जगार तुम रहुच ठीक ठीक है तो से दिन जाऊले आई हैव एंटर्ड द पंजाब सर्विस से एबे किछि दिन तले एंटर्ड माने जॉइन करछंती पंजाब सर्विस जॉइन करछंती माने से पंजाब रे तंकर चाकरी हिची आई शैल नॉट नो एग्जैक्टली वेयर आई एम पोस्टेड until I arrived there जेपर्यंत मुझे न पहुँच जाइए पंजाब जेपर्यंत मुझे न पहुँच जाइए राइटर कहले मैगी को जे से पर्यंत मुझे जानी जे मु पंजाब रो एग्जैक्टली को जगार मोर पोस्टिंग होइछि तो इज द फ्रंटर वेरी फार फ्रॉम देयर पचारला मैगी पचारला राइटर को जे फ्रंटर माने देश सीमा कौन तुम जो तुम जो पोस्टिंग होती सेठू कौन देश सीमा बहुत दूर नो नो नॉट वेरी राइटर कहले जे ना एते भी दूर नुह फ्रांकी इज बेयर्ड नियर द फ्रंटर द गर्ल्स आईज इज फिल्ड विथ टीयर्स एज सी स्पोक से कहला जे फ्रांकी को बेयर्ड कराई माने सबको कवर दबा पोतीबा को बेयर्ड कहती तो ताको फ्रंटर पाखे माने सीमा
पोता जाइछि कबर दिया जाइछि एटा कहला बेलू तार आखि कांद कांद हो गला। तो व्हेन आई गो टू दैट पार्ट ऑफ द कंट्री आई शैल विजिट योर ब्रदर्स ग्रेव एंड राइट टू यू। तो राइटर कहते जे मु जितेबले आम देशर से जगह को जी माने फ्रंटियर जीवी देश सीमा पाखे पहुँची से मो तो मो भाईर ग्रेव माने हूँ समाधि बा कबर। तो भाईर कबर पाखक जी आउ राइट टू यू माने सेठू तुमको लेटर लिखी। तो सरला आम पार्ट 3 पढ़ी देचु। आमती कि मुझे पार्ट 1 और पार्ट 2 आम अलरेडी डिस्कसन कर सारी। आदि आप देखी ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तार लिंक अच्छी आप देखिपारे। तो आज एतिकी आज आम जहाँ भी कष्ट शब्द पढ़ले तार अर्थ मुझे दूसरी आपको आप देखी दिंतु। सो गाइज दिस इज द लिस्ट ऑफ हार्ड वर्ड्स एंड देयर मीनिंग, प्लीज काइंडली नोट इट। So guys, that's it for today's video. Thanks for watching. Please do like, share and comment to this video, and for more such interesting videos subscribe to my channel and press the bell icon.